Hello students, I am back with my next video for class 7. This is my video for class 7 in which I am going to explain you chapter number 5, the a farmer's greatest treasure. एक किसान का सबसे बड़ा खजाना कौन सा होता है? पेज नंबर 57. We are hungry, what shall we eat? There is nothing anywhere. हम भूखे हैं, हम क्या खाएं? कुछ भी नहीं है खाने को. All over the village people were in distress. How gaunt and haggard they had all become. With drawn faces and trembling legs, they walked around the digging for roots, searching for wild berries to control their hunger. सारे गांव में जो है एक अजीब उदासी का माहौल छाया हुआ था. सब जो है काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे भूख के मारे, और जो है काफ़ी इल और टायर्ड थके हुए से लग रहे थे. और जो उनके जो चेहरे थे, ऐसे लग रहा था मानो किसी बीमार और थके हुए व्यक्ति का हो. पैर कांप रहे थे. ये सब कुछ हो रहा था वहाँ पे फैली भुखमरी के कारण. It had been such a bad year. Just when the wheat was ripening, yellow and tall, it had rained heavily every day. Although the farmers tried to save all they could, but much of the golden wheat had turned black and rotted away. ये जो है साल बहुत ही बुरा बीता था किसानों के लिए, क्योंकि जैसे ही गेहूँ पक के तैयार होता, काफ़ी मतलब येलो होता, तो इतने में ही काफ़ी भारी वर्षा हो गई थी. हालांकि किसानों ने बहुत मेहनत करी कि वो गेहूँ बचा सके, लेकिन जितना भी गोल्डन व्हीट है यानी कि जो गेहूँ पक चुका था वो ब्लैक हो चुका था और ख़राब हो चुका था. But it was time to plant the right seedlings. The rain stopped completely. Not a drop of rain fell. The tender green stalk shriveled up and insect ate up the rest. लेकिन अब जो टाइम था वो चावल बोने का था. बारिश रुक चुकी थी और एक बूंद भी पानी की नहीं बरस रही थी, और जितने भी टेंडर ग्रीन स्टॉक्स थे, वो जो धान लगाए जाते हैं, वो सब कुछ जो है सूख चुके थे और कीड़े उसे खा चुके थे. So when autumn came, there was neither wheat nor rice in all the villages for miles around, and the people were starving. तो जब अब ऑटम यानी कि पतझड़ आया, तो ना तो वहाँ पे गेहूँ थे ना चावल थे. वहाँ मीलों दूर गांव में जो है हर जगह भुखमरी फैली हुई थी. लोग भूख से मर रहे थे. In one of the worst affected village, there was a farmer affectionately called Meosha San. He, his wife and son Aisu tried to manage as best as they could. इसी ऐसे ही पीड़ित गांव में एक जो था फार्मर रहता था, जिसका नाम था मेओशा सैन. उसकी बीवी और उसका बेटा आइसू जो है काफ़ी मेहनत कर रहे थे कि इस सिचुएशन में सही तरीके से संभल के रहें. One day Aisu went inside their empty barn and was used to overflow with grain, searching for a shovel to dig for roots. He looked here and there, but not finding it. But further inside, groping about in the dark, he suddenly stumbled against something large and heavy. तो एक दिन आइसू जो है अंदर गया, एक गोदाम के अंदर को गया जहाँ पे जो है ग्रेन्स वगैरह रखे हुए थे, कि वहाँ पे वो शोवल यानी कि फावड़ा जो है ढूंढ सके, ताकि वो रूट्स वगैरह वहाँ से हटा सके. और उसे कुछ नहीं मिल रहा था. थोड़ा सा और अंदर गया तो उसे एक बोरा मिला, जहाँ पे जो है काफ़ी भारी सी चीज़ से वो टकरा गया था. What's this? He cried, astonished. On discovering a big full sack. Opening it, he pushed his hand inside. तो वो कहते क्या है ये? उसने जब देखा तो वो एक पूरा बोरा जो था भरा हुआ था, और उसने अपने हैंड से उसे पुशअप किया. Wheat, wheat, he shouted, thrilled and amazed as a large grains of wheat slipped through his fingers. वो चिल्लाए गेहूँ गेहूँ, और कई सारे गेहूँ जो है उसके हाथ से फिसल गए थे. Father must have forgotten that he had a huge sack full of finest wheat stored away in the barn, thought a delighted Aisu. Now we needn't go hungry, at least for a few days. Oh, what a feast there will be tonight. अब फादर जो है वो ये सोचता है कि फादर जो है ये भूल गए हैं कि उनके पास जो है इतने अच्छे गेहूं का बोरे भी रखे हुए हैं, तो अब जो है हमें जो है भूख से नहीं मरना पड़ेगा, और जो है
आज रात को बहुत अच्छे से खाना खाया जाएगा। आइसू ran to his father, वो अपने पिता के पास जाता है। Father, he shouted joyously, I've just found the sack of wheat you stored in the barn and forgot. Let's grind it once. We can eat well for some days at least. तो कहते कि वो मतलब खुशी से चिल्लाते हुए कहते हैं कि पिता, आपने जो बैन में यानी कि स्टोर में जो वो गेहूं के बोरे रखे हैं और आप भूल गए हो, तो मुझे वो बोरे जो है मिल चुके हैं। अब उसे हम पीस के जो है कुछ दिन अच्छे से खा सकते हैं। Meosha sprang up quickly. No, no, Aisu, not that wheat. He cried, pulling his son's arm. Listen to me. No matter what happens, the grain must never be touched. I had deliberately stored away my best wheat to be used for sowing the next crop. Those are grain seeds, Aisu. मुआशा तुरंत उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी ओर खींच के कहता है कि नहीं नहीं, वो वाले गेहूँ नहीं खाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। वो मेरे बेस्ट गेहूं के सीड्स हैं जो कि मैंने नेक्स्ट अगली फसल के लिए रखे हुए हैं, अगली क्रॉप के लिए रखे हुए हैं, और उन्हें बिल्कुल भी नहीं खाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। But stammered Aisu as tears of hunger and disappointment filled his eyes. Father, other farmers have eaten their last grain. Why can't we eat instead of suffering terribly every day? He wept. कहते हैं कि लेकिन जो अब आइसू जो है भूख से काफ़ी उदास हो चुका था, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। कहते हैं वहाँ पे सभी फार्मर्स ने जो है अपने सारा मतलब जितना भी उन लोगों ने गेहूँ इकट्ठा किया था सब खा गए हैं, तो हम क्यों नहीं खा सकते? तो हम लोग इतने बुरी तरीके से क्यों सफ़र कर रहे हैं? दैट इज़ ऑल मोर रीज़न माई सन फॉर नॉट टचिंग इट। कहते ये ही तो सबसे बड़ा कारण है कि मैं नहीं छू सकता। मुआशा ने बड़े ही आराम से कहा, It will be far worse calamity than this famine if the fields of the farmers lie fallow just because they have no wheat seed plant. तो कहते हैं ये और ज़्यादा कैलेमिटी यानी कि और ज़्यादा डैमेज की बात हो जाएगी कि अगर जो खेत मतलब भूखमरी से भी ज़्यादा कि अगर किसानों के खेत जो हैं बिना बीज के पड़े रहेंगे। These are not just seed, Aisu, they are a farmer's greatest treasure. कहते ये केवल बीज नहीं है, ये किसान की सबसे बड़ा खजाना है। If a farmer robbed his own treasure, what would remain for him? He continued. I know you are hungry, but so is everyone else. Have patience, Aisu. Soon these very seeds will feed not only you but all the villagers. तो कहते हैं कि अगर क्या होगा अगर एक किसान अपना ही खजाना लूट के खा जाए तो। कहते हैं मैं जानता हूँ तुम भूखे हो जैसे कि और हैं, थोड़ा सा सब्र रखो और यहाँ पे यही सीड्स जो हैं केवल तुम्हारा ही पेट नहीं भरेंगे बल्कि और भी विलेजर्स का पेट भरेंगे। Hearing this, Aisu bowed his head in silence. Meosha was extremely miserable to see his only child grow weak and thin every day. He poured his half share of watery gruel into his Aisu's ball, pretending not to be hungry. तो अब ये जो है सुन के जो है आइसू का सिर जो है और झुक जाता है साइलेंस में, और वो मुआशा भी जो है काफ़ी दुखी हो जाता है ये देख के कि उसका बेटा जो है भूख के मारे दिन प्रतिदिन जो है कमज़ोर होता जा रहा है। तो वो अपना हाफ ग्रूल यानी कि ग्रूल में यानी कि एक लिक्विड फूड होता है जैसे हम खिचड़ी खाते हैं उस तरीके का, वो उसके कटोरे में डाल देता है और ये जताता है कि उसे भूख नहीं है। Soon autumn came again. It was time to sow the new crops of wheat. अब फिर से पतझड़ आ गया था, किसानों के पास दोबारा मौका था वीट दोबारा से ग्रो करने का। What shall we do? cried the farmers. Where shall we get the seeds to sow our fields? कि अब हमें क्या करना चाहिए? किसान पुकार करने लगे कि हमारे पास कोई बीज नहीं है बोने के लिए। तो आगे क्या हुआ इस स्टोरी में जानने के लिए जस्ट वेट एंड वॉच माई नेक्स्ट वीडियो. Till then, do the question and to the word meanings and chapter introduction with the author introduction which is given on page number 60 in your notebooks in a very neat and clean handwriting. Till then, stay home, stay safe.